So, well, we have a target to understand this important topic of the machine learning. And as we are studying the applied machine learning, and the whole topic was related with the like ED analysis. What is the ED analysis? And among the ED analysis, we are moving one more point. Very important point is there, which is basically the T-distributed stochastic neighbor embedding in TSNE algorithm is important. So this is T-distributed. This is the last ED analysis program. And if you go properly and study this well, that definitely is very much interesting. So my objective is to make you able to understand what exactly this MLT distributed stochastic neighbor embedding the SNE algorithms. So let's begin with this and try to understand. The content is available with you and that is shared within the drive. Drive में भी आपके पास content available होगा. And moreover, and if you keep on moving and studying well, this will be available also this. So that is also the part of like, and meanwhile, if you have any question, you can go through this YouTube video. आप इस YouTube video पे भी जा सकते हैं और YouTube videos के बाद में आपको फिर भी कोई डाउट होता है, you can easily ask to us. Arrange classes arrange की जा सकती हैं आपके लिए, and can have a discussion on WhatsApp, call, and as well as telephonic or physically. In all the sense you are educated. So let's understand what exactly the meaning of it. The name T-SNE algorithm is very much interesting. So this is called the T-distributed stochastic neighbor embedding. Is a non-linear dimensionality reduction technique, well suited for the embedding high-dimensional data for visualization in low-dimensional space or 2 or 3 dimensions. So most important part, what we are trying to understand is exactly the target is very much clear. So we have a non-linear dimensionality reduction technique. So most important part, we just take care about that. This is called as a non-linear dimensionality reduction technique. Only one single topic we are going to study today. This is the non-linear dimensionality reduction, well suited for the embedding high-dimensional data for visualization in low-dimensional space for 2 or 3 dimensions. So exactly, let's understand. We have already discussed about the dimensionality reduction. अभी हम लोगों ने बात किया यहाँ पर कि non-linear dimensionality reduction technique है, जहाँ पर हमें बहुत high dimensional data होगा, इसके visualization को देखना और space हमारे पास में limited है, when we have a limited space हो गया. So what is the dimensionality reduction that we are going to understand here? The dimensionality reduction represents n dimension data, multi-dimensional data with many features in 2 or 3 dimensions. An example for dimensionality reduction can be discussed as a classification problem. एक example भी ले सकते हैं that is being contained over here. Student we play football or not, that relies on the both temperature and humidity can be collapsed into just one underlying feature, since both features are correlated to a high degree, and we can reduce the number of features in such problem. A 3-dimensional classification problem can be hard to visualize, where 2-dimensional can be mapped into simple 2-dimensional space and 1-dimensional problem. So just take an example. जैसे many times हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं कि डायमेंशनलिटी जो रिलेटेड होती है वो रिलेटेड होती है कि फॉर सपोज सर्टेन काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आपका कोई अपना खुद का एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यू आर ट्राइंग, आप कोशिश कर रहे हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, बट टू गेट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव यू नीड टू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ फीचर्स, है ना, आपको बहुत सारे फीचर्स को डिस्कस करना पड़ेगा. तो व्हाट वी हैव टू डू, अब उन फीचर्स को देखने के लिए, अब सारे फीचर्स के बेसिस पर अगर आप डिसीजन लेने जाएंगे तो समटाइम इट माइट क्रिएट अ कॉम्प्लेक्सिटी. तो आप कॉम्प्लेक्सिटी के लिए एग्जांपल लिया गया कि सपोज कीजिए किसी का कोई स्पोर्ट्स है एंड दैट स्पोर्ट्स इज डिपेंडिंग अपॉन द मेनी काइंड ऑफ फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स पे काम कर रहा है. क्या फीचर है? फीचर है आपकी ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, इन सब पे काम कर रहा है. तो इज इट पॉसिबल दैट इंटरकोरिलेटेड में से अगर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी में से, अगर ह्यूमिडिटी में से हम एक ही फैक्टर को उठा के ले लें और दूसरे के बेसिस पे डिसीजन निकाल दें, so we can reduce the one dimension of the humidity based on the temperature as well. And similarly, if the rain content is there, पानी पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला, बारिश होने वाली नहीं होने वाली, इसके बेसिस पे, तो जब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसी सर्टेन काइंड ऑफ डायमेंशंस के को रिड्यूस करके अचीव हो सकता है, तो इट इज बेटर टू गो फॉर, बिकॉज इट हेल्प्स टू सिंप्लीफाई द एल्गोरिथम, मदद करेगा इसमें. तो दैट इज, तो अब 3 डिग्री क्लासिफिकेशन हो गया, 2 डिग्री हो गया, 2 डायमेंशन हो गया, 3 डायमेंशन हो गया, 1 डायमेंशन हो गया, ये सारी चीजें आती है. T-distributed stochastic neighbor embedding is a dimension reduction. This algorithm uses some randomized approach to reduce the dimensionality of the data set. Hand non-linear. This focuses more on retaining the local structure of a data set in the lower dimension as well. So let's begin with this one. What is the difference between PC and the TSNE? TSE में क्या करते हैं? अब यही काम हम PC में कर रहे थे, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में कर रहे थे, यही हम TSNE में कर रहे हैं. Even through PC and the TSNE, both are unsupervised algorithms that are used to reduce the dimensionality on the data set. PCA में deterministic approach use की जाती है dimensionality reduction की, और TSNE में randomization. So if somebody asks to you
कि भाई पीसी में भी हम वही प्रिंसिपल कंपोनेंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनिस्टिक फिक्स कर रहे हैं। और यहाँ पर हम रैंडमाइजेशन यूज कर रहे हैं, मतलब रैंडमली वी कैन पिक अप द ह्यूमिडिटी, रैंडमली वी कैन पिक अप द टेम्परेचर और एनीथिंग एल्स फॉर जस्ट प्लेइंग एन स्पोर्ट। तो ये जरूरी पार्ट हो गया कि आप यहाँ पर किस कंटेंट की बात करें। The data that is obtained after reducing the dimensionality by the TSNE is generally used for visualization purpose. Visualization के purpose से हम इसको use करते हैं. One more thing that we can say in advance of the TSNE data is that it is not affected by the outlier, but the PC algorithm is highly affected by the outlier because the methodology that we use in the two algorithm is different. While we try to preserve the variance in the data set using algorithm pertain to the local structure of the data set. अब यहाँ पर हमारा टारगेट जो है वो पीसीए में समझ लिया, टीएसएनई के बारे में समझ लिया, तो वो ये कहते हैं कि एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस और आ जाइए जिसमें कि एडवांटेज पॉइंट आ जाता है कि वन मोर थिंग वी कैन से द एडवांटेज ऑफ यूजिंग टीएसएनई डेटा इज दैट इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द आउटलायर्स। टीएसएनई में आउटलायर्स जो बाहर के एक्सेस डेटा है उससे अफेक्ट नहीं हुआ, बट द पीसीए एल्गोरिथम इज हाईली अफेक्टेड बाय द आउटलायर्स। Try to preserve the variance of the data using PCA algorithm to retain the local structure of the data. Now let's begin how it works. So TSNE is a non-linear dimensional reduction algorithm. Find pattern in the database or similarity of data point with feature. The similarity of the point is calculated as a conditional probability that point A would choose the point. अब TSNE में करके आ रहे हैं बिकॉज हम इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव वही है कि हमें डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करना होता है, और जब हमें डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करना व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, क्या करना है, is a non-linear dimensionality reduction algorithm finds pattern of a data set. So it is working on pattern. That is what the very important point to think on. समझने और सोचने की बात सबसे important यही है कि what we are working pattern. On the similarity of data point with feature, the similarity of the point is calculated as a conditional probability. जिसको हम कहते हैं जब एक चीज दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड कर जाती है, पैटर्न क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज पैटर्न। पैटर्न को हम सिग्निफिकेंटली अगर समझने की कोशिश करते हैं तो पैटर्न को समझेंगे दैट सिंपली गिव यू एन आइडिया वन थिंग इज फॉलोइंग इट्स प्रीवियस प्रैक्टिस। तो कोई एक चीज है ना, तो कोई एक चीज है जिसको प्रीवियस प्रैक्टिस को वो फॉलो कर रही है, प्रीवियस प्रैक्टिस को फॉलो कर रही है और उसी की सक्सेसर है, वी कॉल इट एज लाइक इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिस के एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इट मींस जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं मॉर्निंग में 6 o'clock वॉक करता हूँ, that is 6 o'clock I'm walking, that is what I do. So it's my daily routine pattern that I have a walk at 6 o'clock. Got it? And similarly, looking for other kind of a thing, so pattern has a connection with the previous thing. So when the previous connection did not, so that is also called as a conditional probability. If it happens, it happens. अगर या कोई बारिश नहीं हो तो मेरा पैटर्न हमेशा फॉलो होगा, पैटर्न डिस्टर्ब होगा जब रेन में जाएगी या कुछ और हो जाएगा, दैट इज व्हाट इट इज। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, द सिमिलरिटी ऑफ पॉइंट इज कैलकुलेटेड एज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अब पिछले पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आप मूव ऑन जब करेंगे तब क्या होगा, वहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए at that point would choose point B its neighbor. In that tries to minimize the difference between the conditional probability in high dimension, lower dimension space for a perfect representation of a data point in lower dimension space. तो ये TSNE के लिए जब आप काम कर रहे हैं तो TSNE के लिए आप इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करेंगे जो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में ये डिसाइड करेगी this point is going to be a neighbor, then it is coming to be a pattern. It then tries to minimize the difference between these conditional probabilities in higher dimension. So that kind of a thing are available. इस तरह की चीजें हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सॉल्व करते हैं, that is available. तो मिनिमाइज कर देता है। तो पॉइंट A और पॉइंट B, पॉइंट A और पॉइंट B, इन दो के बीच में गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। इस पॉइंट A और इस पॉइंट B के बीच में, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में कनेक्शन तभी क्रिएट होगा
तभी जाके क्रिएट हो पाएगा, पैटर्न तभी बनेगा व्हेन ए एंड बी इज नेबर्ड टू ईच अदर। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम यहाँ पर क्या कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश यहाँ पर ये है कि हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब टीएसएनई में हम काम कर रहे हैं तो टीएसएनई जो है वो पैटर्न को फॉलो कर रहा है। टीएसएनई जो है वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। वो जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो पैटर्न कैसे आएगा, वो पैटर्न आएगा क्लोज प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो क्लोजनेस होगी प्रोबेबिलिटी, अकोरेंस की प्रोबेबिलिटी होगी, दैट विल बी डिफाइंड होगी। It then tries to minimize the difference between these conditional probability and higher dimension to the lower dimension space for perfect representation। तो उस पूरे डेटा में से जो डेटा उसके नेक्स्ट क्लोज होगा, जो नेक्स्ट पैटर्न बना रहा होगा, वो हमारे काम का इनपुट हो जाएगा। तो हायर डायमेंशन टू लोअर डायमेंशन स्पेस फॉर द परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन। The algorithms computes pairwise conditional probability and tries to minimize the sum of the difference of the probabilities in higher or lower dimension. This involves a lot of calculation and computation, so the algorithm takes a lot of time and space to compute. So TSNE has a quadratic time and space complexity in the number of data points. अब यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पीसीए और टीएसएनई के बीच में हम किस तरीके के डिफरेंसेस की बात कर रहे थे, कौन कौन से मेजर डिफरेंसेस हैं, इनको यहाँ हम समझें। और इसको डिफरेंसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं टेबल की मदद से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हम बात करते हैं पीसीए में और टीएसएनई में, तो पीसीए में यानी कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में इट इज अ लीनियर डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक, और टीएसएनई के लिए आप कह सकते हैं बड़े आराम से इट इज नॉन। इट ट्राइज टू प्रिजर्व द ग्लोबल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटा, मतलब जिस फॉर्म में आपका डेटा आया है, जिस किसी भी फॉर्म में आपका डेटा आया है, सेम फॉर्म में, उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपका डेटा आया है, उसी फॉर्म में आप अपने डेटा के स्ट्रक्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इट ट्राइज टू प्रिजर्व द लोकल स्ट्रक्चर फॉर डेटा। पूरे डेटा स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है इसका। ये किसको करता है, ये कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से इट ट्राइज टू प्रिजर्व द लोकल स्ट्रक्चर, ये कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा मेथड हो जिस मेथड की वजह से आपका पूरा स्ट्रक्चर से उसको इतना मतलब नहीं है, मतलब इस बात से जरूर है कि आपका जो लोकल क्लस्टर आपने बनाया है, जो ग्रुप आपने बनाया हुआ है, वो ग्रुप प्रिजर्व रहे, पूरा स्ट्रक्चर आपका डिस्टर्ब हो सकता है। तो जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया हो उनके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि ये यूनिट नंबर 2 का एक पॉइंट है टीएसएनई। टीएसएनई जो हमने यूज किया हुआ है यहाँ पर वर्ड, वो यूज किया हुआ है इसके लिए टी डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोकास्टिक नेबर एम्बेडेड एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम यूज की जाती है डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए। डायमेंशनलिटी रिडक्शन फिर से बता देता हूँ एक बार, आप सभी लोगों को फिर से बता देता हूँ कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्या होता है। डायमेंशनलिटी रिडक्शन का मतलब होता है कि जब किसी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके पास बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स होते हैं, तो उन फीचर्स में से आप किसी भी तरीके से उन मेजर फीचर्स को पिक कर लेते हैं जिसकी वजह से आप डिसीजन ले पाए। जब आप इस फैक्टर पे काम करते हैं तो आप उसको बोलते हैं कि हमने डायमेंशनलिटी को रिड्यूस, है ना, उसमें हम ये कहते हैं कि हमने उस डायमेंशनलिटी को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, उस डायमेंशनलिटी को हमने रिड्यूस कर दिया। अब हमने जो डायमेंशनलिटी रिड्यूस करी उसका एग्जांपल हमने अभी आपको दिया था यहाँ पर कि सपोज कीजिए कि आप एक कार खरीदने गए और कार के 100 फीचर्स होते हैं, लेकिन उस कार के 100 फीचर्स में से आपने केवल 2 ही फीचर्स को पिकअप किया कि माइलेज क्या है गाड़ी का, और दूसरा फीचर आपने लिया कि उसकी कॉस्ट क्या है। तो माइलेज और कॉस्ट केवल 2 ही डायमेंशन आपने पिक करी और 2 डायमेंशन पे अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को दे दिया। इसका मतलब आपने उसके कलर को, उसके बोनेट को, साइज को, उसके हेडलैम्प्स को,
उसके स्पीड को, बहुत सारी चीजों को रिड्यूस कर दिया। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन बोलते हैं। इसके लिए बहुत सारे ईडीए जो हम करते हैं, ईडीए का जो मेन पार्ट है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का जो मेन पार्ट है, वो डायमेंशनलिटी रिडक्शन ही है। सो डायमेंशनलिटी रिडक्शन हम इसको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, और डायमेंशनलिटी रिडक्शन प्रोवाइड करने के बाद में व्हाट वी डू, डायमेंशनल रिडक्शन करने के बाद में हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे। अब ये डायमेंशनल रिडक्शन के लिए पहली जो टेक्निक हमने पढ़ी थी वो पीसीए थी, जिसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट की बात कर रहे थे। दूसरी जो है वो हम किसकी बात कर रहे हैं, टीएसएनई की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा जब सब पढ़ने के बाद में हम डायरेक्टली यहाँ पे एक कंपैरिजन टेबल पर आते हैं, और इस कंपैरिजन टेबल पर हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पीसीए और टीएसएनई के बीच में हम डिफरेंस समझ सकते हैं। तो मैंने ये समझाया कि ये एक लीनियर डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक होती है जिसको पीसीए बोलते हैं, और ये एक नॉन लीनियर होती है। इसमें जो मेन स्ट्रक्चर ऑफ डेटा है वो डिस्टर्ब नहीं होता, प्रिजर्व रहता है। इसमें जो मेन स्ट्रक्चर ऑफ डेटा डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन जो ग्रुप्स हमने बनाए हैं, छोटे क्लस्टर्स बनाए हैं, वो प्रिजर्व रहेंगे। इट डज नॉट वर्क वेल एज कम्पेयर टू टीएसएनई, ज्यादा अच्छा काम करता है। तो उन्होंने कहा कि टीएसएनई, ऑब्वियसली जब खुद पीसीए मान रहे हैं कि टीएसएनई एक अच्छा तरीका है, तो वो एक्सेप्ट कर लिया गया। इट डज नॉट इन्वॉल्व हाइपर पैरामीटर्स, इसमें हाइपर पैरामीटर्स नहीं यूज करते। इसमें हाइपर पैरामीटर यूज किए जाते हैं, परप्लेक्सिटी यूज किए थे, लर्निंग रेट, नंबर ऑफ स्टेप्स, ये हाइपर पैरामीटर्स कहलाते हैं। जिसमें परप्लेक्सिटी होती है, लर्निंग रेट, कितनी जल्दी से मशीन सीख रही है, नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है, इससे कौन सीख रही है। इट गेट्स हाईली अफेक्टेड बाय द आउटलायर्स। तो आउटलायर्स हैं, मतलब जो डेटा की बाउंड्रीज हैं, उससे फर्क पड़ता है। इट कैन हैंडल द आउटलायर, मतलब इससे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आउटलायर्स को चेक कर सकते हैं। पीसीए इज अ आउटलायर्स का मतलब समझ लेना, जैसे फॉर एन एग्जांपल, वही कार वाला एग्जांपल हम आपके लिए लेते हैं। तो जब कार का एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो व्हाट हैपन, कार का एग्जांपल लेने के बाद में व्हाट वी डू, कार का एग्जांपल लिया, कार के बहुत सारे फीचर्स हैं, थाउजेंड्स, 1000, हंड्रेड्स ऑफ फीचर्स कैन बी देयर फॉर कार। कार को अगर आप देखेंगे, उसके फीचर्स की कोई लिमिट नहीं। बट अगर आप जब कहीं कार खरीदने जाते हैं, तो जब वो पैम्पलेट देते हैं, उस पैम्पलेट के ऊपर भी वो 10 या 12 फीचर्स मेजर देते हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो भी डायमेंशनलिटी को ही रिड्यूस कर रहे हैं। उन्होंने भी डायमेंशनलिटी को रिड्यूस कर दिया। अब ये जो डायमेंशनलिटी रिड्यूस की गई, ये जो डायमेंशनलिटी रिड्यूस की गई, वो डायमेंशनलिटी रिड्यूस करने के बाद आपको केवल कंपोनेंट, प्राइम कंपोनेंट फीचर दे रहा है। अभी प्राइम कंपोनेंट जो फीचर्स थे, जो कार वालों ने किए, वो पीसीए के एनालिसिस के लिए जो प्रिंसिपल कंपोनेंट थे वही आपको दिखाई। पर यदि इस फीचर को आप गए और आपने जाने का पूरे बुकलेट में से कुछ रैंडमली पिक कर लिया एज पर योर चॉइस, तो ये आपकी पीएसएन है। क्योंकि जरूरी नहीं कि जो कार वाले आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट दिखा रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव वही हो और उसके बेसिस पे आप कार खरीदने जा रहे हैं। अब उन्होंने कलर इंक्लूड नहीं किया, हो सकता है आपके दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट कलर ही। तो ये टीएसएनई से आप रेंडमाइज करके चीजों को निकाल सकते। इसीलिए छठवें नंबर में कहा गया है, पीसीए इज अ डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम, इट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक और रेंडमाइज्ड। इट वर्क्स बाय रोटेटिंग वेक्टर्स फॉर द प्रिजर्व वेरिएंस। मतलब जो आपने वेरिएंस निकाला, उस वेरिएंस के रिस्पेक्ट में चेंजेस को देखता है कि कितना वेरिएंस जा रहा है। It works with minimizing the distance between the points in a Gaussian. Gaussian space में जो distance है उसको minimize करेगा। It can find decide on how much variance to preserve using even values. ये even values को use करता है और ये hyper parameters को use करता है। PCA is a computationally less expensive than TSNE. TSNE महंगा पड़ता है, expensive है, लेकिन क्योंकि effective है तो use करना पड़ेगा। और हाई डायमेंशनल डेटा सेट है, बहुत ज्यादा डायमेंशन हमको रिड्यूस भी कर सकता है। It can be used for visualization of high dimensional data in low dimensional space. बड़ा जो डेटा उसको लो डायमेंशन को पता है। It is specifically designed for visualization. It's known to perform better in this regard. इसको बनाया ही इसीलिए गया है कि जब हाई डायमेंशनल डेटा को आपके पास लो डायमेंशनल स्पेस होता है, तभी के लिए बताया गया है। It is suitable for linearly separable data set.
इट इज नॉट मोर सुटेबल फॉर नॉन लीनियर, यहाँ पे लीनियर है वहाँ पे नॉन लीनियर है। इट कैन बी यूज फॉर फीचर एक्सट्रैक्शन, फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। इट इज मेनली यूज्ड फॉर विजुअलाइजेशन एंड एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस। तो केवल फीचर एक्सट्रैक्शन भी इसका एक रीजन हो सकता है, और यहाँ पर रीजन ये है कि पीडीए कर दीजिए भाई, डेटा को रिड्यूस कर दीजिए, डायमेंशनलिटी रिड्यूस करके आप हमें प्रोवाइड कर दीजिए इन मीन। PCA can be sensitive to the ordering of the data points. TSN is less sensitive to the ordering of the data points. That is what. So many of the features are there which is related with the SNE and the PCA. There's a very important, बहुत important comparison है ये। आप लोग इस important comparison को पढ़ लें, देख लें, स्टडी कर लें, डिस्कशन में ले आए, और कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, तो दैट विल बी अवेलेबल देयर। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इस दिमाग में रखिए कि पीसीए जो यूज किया है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस से यूज की जा रही है, वो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, और टीएसएनई जो है वो रैंडमाइज अप्रोच है। रैंडमाइजेशन हमें मदद करता है मोर ऑप्टिमाइजेशन के लिए, लेस रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए, बल्कि प्रिंसिपल कंपोनेंट में फिक्स पैटर्न है। तो इसीलिए मशीन लर्निंग जो टेक्निक है, डीप लर्निंग टेक्निक, वो हमेशा के लिए बिकॉज दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द रैंडमाइजेशन ऑफ द फीडबैक्स। क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, फॉर एवरी सिचुएशन इज रेडी चेंजिंग इट्स आउटकम, सो द रैंडमाइजेशन इज देयर। तो जितना आप मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के अंदर आपके पास में रैंडमाइजेशन की प्रोबेबिलिटी रहेगी, टेंजेंट आप मेंटेन करके रखती है इस डायरेक्शन में, तो इस डायमेंशन में अगर आपकी टेंजेंट मेंटेन होगी तो इट इज गुड एंड इज पॉसिबल कि वो आपकी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगी। So that's an important part from my side. Meanwhile, if you have any sort of a doubt, you can ask me any question. You are free to ask. That's all about how we are going to work with dimension analysis. And or basically, a different kind of algorithms available are there. Tool भी available होते हैं, Python में जो आप काम करते हैं, that is available. Tools are available. आप उनके भी काम कर सकते हैं। तो ये आज का ऐसा नहीं था. This from my side. Meanwhile, anyone is here to और डिस्कशन अगर कोई करना चाहता है तो कर सकते हैं. Free to discuss. नो सर. ठीक है, कोई अगर इस पॉइंट से डिस्कशन नहीं है तो नहीं कर सकते. और बाकी आपका क्योंकि एग्जाम है आज, थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, यू हैव 2 more days टू गो. कुछ भी मैं आपको एक बार आपका सिलेबस शेयर कर देता हूँ. कुछ भी अगर आपको, मैं आपको एक बार सिलेबस शेयर भी कर देता हूँ, आपके साथ 2 मिनट डिस्कशन में भी ले लेता हूँ, है ना. आई होप सो यू लाइक इट. तो मैं उसको एक बार ले लेता हूँ डिस्कशन में भी. ये आपकी 2 यूनिट है, ये दोनों, और बड़ी आसान सी, बड़ी सीधी सी यूनिट्स है ये दोनों. फिर से एक बार आप सबके लिए रीड आउट कर देता हूँ मैं सारा. फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग, सब्जेक्ट का नाम है अप्लाइड मशीन लर्निंग. अब देखिए, क्योंकि बात कर रहे हैं अप्लाइड वर्ड की, तो मैं आपको पूरा का पूरा 2 यूनिट का रिवीजन यहाँ पे देता हूँ अगले 5 से 7 मिनट के अंदर. अप्लाइड मशीन लर्निंग का मतलब मशीन लर्निंग जो एप्लीकेबल है आसपास, जो यूज में आ रही है. एक होती है फंडामेंटल एंड कंसेप्चुअल, जो कंसेप्ट में है, और एक वो होती है जो यूज में आ रही होती है. तो यूज में आने वाली जो मशीन लर्निंग है, उसमें सबसे पहले यूनिट में आपको दिया गया है फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग. तो प्रोग्रामिंग क्योंकि हम मैक्सिमम पाइथन को यूज कर रहे हैं, आर का भी हमने थोड़ा डिस्कशन किया था पिछली बार, एनएलपी की भी लैब कर रहे हैं इस बार, तो एनएलपी में भी पढ़ते हैं हम, कोई भी पाइथन को यूज करके करते हैं. तो उन्होंने कहा एक बार फिर से पाइथन का यूनिट 1 में रिव्यू ले लीजिए. आपने पहले कई बार पढ़ा हुआ है, लेकिन इस बार अब फिर से आप एक बार रिव्यू ले लीजिए कि क्या होने क्या वाला है ना. आप एक बार रिव्यू ले लीजिए. तो व्हेन यू आर पिकिंग अप योर रिव्यू हियर, तो व्हाट इज हैपनिंग, इस रिव्यू में यू आर ट्राइंग टू वर्क ऑन कि पाइथन क्या है, डेटा साइंसेस क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, ये सारी चीजों पे आप एक बार डिस्कशन में उसको लेके आ रहे हैं. ठीक. एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन, ये पहली यूनिट होगी. पहली यूनिट में आप सिंपल ये पढ़ रहे हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है, डेटा साइंस में इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, डेटा स्ट्रक्चर, कितने कितने टाइप के डेटा हो सकते हैं, कितने टाइप के फंक्शन हो सकते हैं, नमपाई क्या है, मैटप्लॉटलिब क्या है, पांडास क्या है, कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर आप इनको चेक कर लेते हैं.
देन आफ्टर आप सेकंड यूनिट में जब जाते हैं कहते हैं कि हमारा क्योंकि अप्लाइड है, यूज होना है, तो सबसे पहला काम आपके पास होता है किसी भी मशीन लर्निंग में काम करने के लिए। फर्स्ट सबसे पहला टास्क ये होता है कि आप अपने डेटा को कलेक्ट कीजिए, और जब आपने वो डेटा कलेक्ट कर लिया है तो उस डेटा पे आप क्या कीजिए, उस डेटा को आप एक्सप्लोर कीजिए, उसकी एनालिसिस कीजिए। तो डेटा को रिफाइन करना, यूजफुल बनाना, इस कहलाता है ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो ये ईडीए जो एनालिसिस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आपके पास में व्हेनेवर यू आर हैविंग अ सर्टेन डेटा, यू नीड टू रिफाइन योर डेटा एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप एक कार के लिए चले जाइए, सपोज कीजिए आपने मारुति, हुंडई, किसी की भी कार उठाई हुई है। अगर आप उस कार के फीचर्स को देखेंगे तो कम से कम 8 से 10 पेज के उसके डेटा स्पेसिफिकेशन आपको मिलेंगे। पर क्या वो सारे के सारे डेटा स्पेसिफिकेशन जब आप कार खरीदने जाते हैं तो आपको टेम्पलेट पे दिखाता है? वो नहीं दिखाता। only important features are with you. So that is a exploratory data analysis, क्योंकि वो सारे फीचर्स उसके साथ रिलेटेड है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कस्टमर वो वहां पे दिखाए जा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसको ईडी एनालिसिस की जा रही है। ईडी एनालिसिस में किस टाइप की मैथमेटिक्स यूज होती है ये बताई गई है। ईडी एनालिसिस के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पीसी एनालिसिस एंड टीसेट। तो पीसी एनालिसिस और टीसेट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात करी। तो मेजरली लीनियर अलजेब्रा, किस तरह की प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स यूज की जाती है ये बताया गया है यहाँ पर, पीसीए के बारे में बताया गया है, और टीएसएनई क्या होता है, टी डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोकास्टिक नेबरहुड एम्बेडेड, इसके बारे में बताया गया। तो दैट इज व्हाट और डायमेंशनल ट्री रिडक्शन। तो दूसरी यूनिट ये बताती है कि भाई डेटा को रिड्यूस कीजिए, जरूरत का डेटा दिखाइए, और जरूरत का डेटा दो मेजर तरीके से दिखाया जा रहा है, पीसीए के थ्रू और पीसीए के साथ साथ टीएसएनई के थ्रू। और पीसीए जो होती है वो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, और टीएसएनई जो है वो रैंडमाइज्ड अप्रोच है। तो ये आपकी यूनिट 1 और यूनिट 2 है। इसके बाद फर्दर फिर हम इसमें आगे मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, ओके सर, ओके। फिर भी किसी को कोई डाउट है, कोई डिस्कशन है, कुछ भी कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम फ्रॉम माय साइड। ऑल कंटेंट्स आर अवेलेबल, ड्राइव में अवेलेबल है, आपके ग्रुप पे अवेलेबल है, एवरीवेयर किसी में। ठीक है, डन। So I can end up the meeting here.